Hello, Namaste, Srikal, Jai Shri Krishna Kem Show. This is Darshit Kothari from My Student Club. And as you know, My Student Club has started its podcast series to let all the students learn and upskill. Before that, I would ask, have you guessed the guests who will be at our panel today? Yeah, it's Mumbai's twins who has secured All India Rank 2 and All India Rank 8 in CA Final November 2023, and they have also secured All India Rank 3 and All India Rank 4 in their CA Inter examinations. So without wasting much time, let's call upon CA Shruti Parolia and CA Sanskruti Parolia. So I would just ask you one thing, don't miss the end and stay tuned because we have a lots of learnings throughout this session. And stay tuned. So hello Shruti Parolia, hello Sanskruti Parolia. Sorry to add prefix. Hello CA Shruti Parolia and hello CA Sanskruti Parolia. Hello Darshit. How are you doing? Doing good. All good? Or a bit relaxed after results? अब थोड़ा रिलैक्स हो गया लाइक आफ्टर द रिजल्ट्स इट वाज अ लॉट ऑफ जॉब सर्च प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू ये सब स्ट्रगल अच्छा लगता है ना, लेकिन पढ़ाई से ऐसा थोड़े से बाहर निकल गए तो इट्स लाइक अ बिट रिलैक्स्ड, राइट? तो वी हैव अ ग्रेट एज ऑफ नाउ द गेस्ट कमिंग अप ओवर हियर एंड एक आज का सेशन काफी यूजफुल रहेगा फॉर ऑल अवर सीए फ्रैटर्निटी मेट्स एंड इवन फॉर द कैंडिडेट्स हु आर स्टिल अपीयरिंग फॉर सीए फाइनल नाउ. So I hope this session will get us a best one in terms of output. All right. So I have my first question कि हम CA करते हैं तो हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि CA में रैंक लाना है. मतलब काफ़ी कम लोग सोचते हैं टू बी ऑनेस्ट. यार हम मुझे CA बनना है, वो CA प्रीफिक्स ऐड करना, दैट इज़ अवर मेन मोटिव. तो आप लोग ने ऐसा सोचा था कि CA प्रीफिक्स ऐड करना है कि आपने ऐसा सोचा था कि मुझे रैंक लाना है कि बस पढ़ते पढ़ते रैंक आ गई? सीए प्रीफिक्स ऐड करने का ही मेन गोल था एंड यू नो टू गिव योर बेस्ट. आई थिंक दैट वाज द गोल. जैसे रैंक बस का गोल नहीं था. बेसिकली व्हाट आई बिलीव ऑलवेज वाज कि अपना बेस्ट हो. जैसे बाद में कुछ भी रिजल्ट आए थे इवन इफ इट्स नॉट अ रैंक देयर शुड बी एनी रिग्रेट कि ऐसा नहीं कि आपका कुछ और थोड़ी मेहनत करते तो रैंक आ जाती. सो वो था कि बस इतना मेहनत कर दो कि रिग्रेट नहीं हो रिजल्ट डेट पे. मतलब रैंक का सपना तो भले ही रख लो, पास तो हो ही जाएंगे. मतलब मेन तो अपना CA prefix add होना चाहिए. Correct. So after you, as you all have also secured rank in your CA inter examinations, so how does a difference it makes for a CA ranker and a qualified professional? So एक थोड़ा सा insights which you can share, like what you have, personally felt the difference. See, after inter में specifically advantage of rank is one is your articleship. You can get it in the form that you want to, the field that you want to also. So that is one. Second is I think respect. You get a lot of respect and you have a little bit of self confidence also because you have given your best. अपने इतने efforts दिए and then it gets rewarded. So that feeling is also good. I think the most important being the pride that you see in your parents' face. So I think that is also one. The ultimate happiness for ourselves. That's probably the most important. And I think वो एक काफ़ी एडवांटेज है. दो इसका एडवांटेज पर से हमें नहीं था क्योंकि मेरा ऑलरेडी डिलॉयट हो गया था बिफोर द रिजल्ट्स एचआर कॉलेज के थ्रू तो प्लेसमेंट सेल के थ्रू. सो व्हिच इज लाइक बट यूजुअली बाकी को ये एडवांटेज होता है. सो दैट्स नाइस. तो ये जैसे रैंक का प्रिपरेशन तो अलग होता है या नॉर्मल होता है? इट इज नॉट, आई डोंट थिंक अ मच डिफरेंस, बट एक स्टडी रूटीन, द स्टडी मेथोडोलॉजी वी हैव वो शायद थोड़ा डिफर कर सकता है. So Shruti, what a difference you made in your study which you feel कि ये शायद gives an upper edge in your studies and gets you a better score. So I'm talking right now in the perspective for CA inter preparation. CA inter, so I think first to be start from the very beginning. CA inter में genuine time भी काफी कम होता है. It's almost like 9 months only. So starting right from the very beginning will be the first thing. Second is the universal rule which I believe is study from the study module. Because it has like multiple benefits and considering up to we have a lot of MCQs also coming up. So for especially theory subjects like audit and law for CA inter particularly, I'll say study from the study module. The first benefit of it is MCQs become comparatively much easier. And second, the moment you start using the language of study material, it's easier to score as well. So I think the second thing that gave me the upper edge was right from CPT I was relying only on the study material. So I think following that was beneficial. Yes, for practical subjects like accounts etc., you can refer some classes material etc. Because
just study material has easier sums. If you see architect sector, Correct. those tend to have difficult sums. For that, you can for practical subjects like accounts, BTech sector, then for that you can for the architect sector or any classes material. That's fine. But for theory subjects, I always prefer a study material. So I think that gives me an upper edge. And third, I'll say a discipline. So ensuring consistency Consistency, right from the very beginning. Because the more consistent you are, the more you begin right from the very beginning, the higher the chances is that you get more time to revise eventually. Because the major difficulty that you face in inter is that the portion is too large and the time is less. So if you begin it right from the very beginning, you will have time to give enough revision, and hence the quality of your answer will be much better. Okay, like okay. So Sanskriti, you know, many times people ask कि यार हम लोग को CA में इतने घंटे पढ़ने पड़ते हैं, इतने घंटे पढ़ने पड़ते हैं. तो can you just give me an insight कि what was your strategy, number of hours and your study preparation at least for the last 3 to 4 months, because एक बार सारे lectures हो जाते हैं. How you were preparing with number of hours. So एक for CA inter preparations. So for CA inter, जब मेरे classes चल रहे थे तो मेन ये था कि I had this ऐसा 12 hours, this is what my senior had told me, तो मैं वैसा ही follow करी थी. एक 12 hours का उन्हें ऐसा पता है golden number है. सेम जैसे आपने सुना तो वैसे मैंने भी यही सुना था कि 12 hours is what you have to study. तो मैं क्या करती थी, मुझे ऐसा पता कि अगर कोई classes से 8 से 9 hours है तो जो balance amount है 3 hours या 4 hours, उतना आपका self study का hours होना चाहिए. So उतना मैं ट्राई करती थी. obviously उतना हो नहीं पाता था, but then at least 11 hours या 10 to 11 hours तो मिनिमम मैं वो ट्राई किया. अगर से 9 घंटे मेरा क्लासेस चल रहा है, एटलीस्ट 3 घंटा तो मैं सेल्फ स्टडी दूं क्या, दैट इज फ्रॉम द डे 1 itself. So that was I think up to 3-4 months before जब तक क्लासेस खत्म होते. So I was originally a May 2020 student. तो मेरा जनवरी तक I was following this 12 hours वाला रूल की दोनों एडिशन करके आपको 12 hours आना चाहिए सेल्फ स्टडी प्लस या क्लासेस. एंड वंस द स्टडी लीव स्टार्टेड तो अगेन द टारगेट वाज कि 10 to 12 hours का प्रोडक्टिव स्टडी आना चाहिए. प्रोडक्टिव जो भी स्टार्टिंग में वो नहीं आता है. स्टार्टिंग में वो कुछ 8 hours ही प्रोडक्टिव आ पाता है, इवन दो यू आर सिटिंग फॉर 12 hours, but then फिर धीरे धीरे यू हैव टू इंक्रीज. अच्छा, जस्ट अ क्वेश्चन, हाउ यू यूज्ड टू मेजर द प्रोडक्टिविटी? मतलब मैं तो 7 से 7 ऐसा सोचता था कि मैं सुबह 7 बजे गया, 10 बजे तक रात के बैठ लिया तो मतलब हो गया मेरे 15 घंटे हो गए, मतलब 12-15 घंटे हो गए. मैं प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करती हूँ? फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 घंटा बैठी हुई हूँ तो मुझे पता था उस 3 घंटे में मैंने कितनी बार में डिस्ट्रैक्ट हुई. 15 मिनट डिस्ट्रैक्ट हुई, 5 मिनट डिस्ट्रैक्ट हुई, 10 मिनट डिस्ट्रैक्ट हुई. तो वो सब माइनस करने के बाद जो आज आते हैं, जो आपको पता है यू वर देयर, होल सोल यू वर देयर विद दैट कांसेप्ट. हां करेक्ट. आपको पता चलता है कितना डिस्ट्रैक्ट होता है उतना. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ टाइमर ऑन, लाइक मेरे पास पूरा टाइमर ऑन होता था, जिसमें मेरा क्लॉक अगर देखो तो 14 hours 15 hours दिखाता था, बिकॉज़ ड्यूरिंग द ब्रेक्स भी वो टाइमर ऑन होता था. एंड ये भी तो आई वुड यूज इट, आई वुड लाइक प्रॉपर्ली यूज इट. वो जो फ्लैग मार्क का आता था, तो एक मैंने पेज खत्म किया तो मैं फ्लैग मार्क करती थी, फिर दूसरा पेज तो फ्लैग, तो पता चलता था कौन सा पेज में कौन सा है. सेम विद द सम्स आल्सो, तो एक सम सॉल्व किया तो फ्लैग. So which is why I know कि कौन सा सम कितना टाइम ले रहा है for all the sums also for each of the pages. Correct. तो इससे basically एक थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाता है, how much time you are taking for the each sum. And sums के लिए स्पेशल, बिकॉज क्या घर पे बैठे आराम से टाइम लो ना तो फिर सारे सम सही भी होते हैं, सब आते भी हैं. जब टाइम कम हो ना गलतियां भी होती है, कुछ आता भी नहीं है, फिर यू गेट मोर कंफ्यूज. तो आई थिंक विच इज व्हाई टाइम तो डेफिनेटली देखना चाहिए. तो आई वुड, अगर मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल ये 5 मार्क का आता है तो मैं स्पेशली टाइम करती कि 6 मिनट में सम खत्म करो from the question reading to the answer to everything. Okay. So I just want to confirm, like you both are from same CPT batch. Correct. Yes. यार मेरा तो इतना बड़ा इशू हो गया था, like CPT में तो I cleared. Okay. मतलब MCQ था. But inter was the first paper जहाँ पर we are writing too much and everything. तो एग्जाम के टाइम पे कभी ऐसा प्रेशर आया, like how are you managing this examination? एग्जाम के टाइम पे sometimes happens, यार मेरा आज का पेपर खराब गया है, but I don't know how to cope up with the another paper, how we have to improve ourselves so that आगे के paper shouldn't get affected. So I'll ask Sanskriti regarding this, like had this happened with you, or how did you tackle this So thing? in terms of ये कि वो आदत नहीं थी लिखने की, तो टेस्ट सीरीज किया था, बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़ा सॉर्टेड था कि चलो प्रैक्टिस था फॉर प्रैक्टिकल पेपर्स जो काफ़ी लेंदी आते हैं, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स. तो आदत थी कि उसको तो लिखने का प्रैक्टिस था, ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स, सो दैट रिटन प्रैक्टिस वाज कवर्ड देयर. सेकंड तो डिफिकल्ट लाइक एग्जाम्स के वक्त का, आई थिंक एक तो है कि बेस्ट आप भूल जाओ पेपर को, मतलब जो 5 एंड सी एक तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, होगा पेपर टफ होगा, आपको ये 100 मार्क नहीं आएगा, आपको पता 100 मार्क आने भी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं आपको 100 मार्क आने के लिए, या फॉर यू टू राइट दैट 100 मार्क.
आप 80 मार्क्स सही लिखो तो भी आपको एग्जामिशन आएगा, तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप क्या लिखो और जो लिखो वो सही लिखो, फेंकने के मार्क्स वैसे नहीं मिलने वाले, तो नहीं लिखो तो भी चल लोग बोलते जाएगा। हैं अटेम्प्ट करके आ जाओ, मतलब ऐसा तो नहीं अगर होता है। अटेम्प्ट मतलब अगर आपको पेपर में और कुछ भी नहीं आ रहा और फिर आप बैठे ही हो फ्री, तो फिर तो मतलब ऐसे तो लिख कि दो। लास्ट में लिख दो भी कुछ, मतलब इफ यू हैव जेन्युइनली सम आइडिया एज टू व्हाट इज टू बी रिटन हाँ। एंड आप श्योर नहीं हो तो मतलब हाँ मेक सेंस कि चलो लिखो, बिकॉज होगा पेपर में कि कोई पार्ट यू आर श्योर ऑफ, कोई पार्ट यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ, मे बी आंसर हो सकता है, तो यू आर गिविंग अ बेस्ट शॉट ऑफ इट, एंड कोई नहीं आता तो वो लीस्ट टाइम एंड लीस्ट एफर्ट्स उसको देना है। पहले तो फर्स्ट ये दो पार्ट्स को कवर करो, एंड इफ यू हैव कवर दिस इट इज मोर देन इनफ, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा पेपर कंप्लीट करो इवन इन दोस एरियाज। अच्छा, एक तो एक्सेप्ट कर लो फैक्ट कि कोई पेपर्स आते ही डिफिकल्ट, जो नहीं आएगा आपको पूरे, तो मतलब वो मेंटली आप सिर्फ आपको नहीं, सभी को नहीं आया। हाँ, एंड आई थिंक द गुड थिंग वाज, मुझे पता था, मैंने पास पेपर्स किए तो मुझे पता था कोई के सभी फाइनल में पता था ऑडिट डिफिकल्ट आता है, डीटी डिफिकल्ट आता है, तो मैं मेंटली रेडी ही गए थे कि हाँ चलो ये पेपर्स तो भाई 40 लेके आ जाते हैं बस, दैट इज द मेन आई थिंक। वो अप्रोच मुझे ये एक प्रोफेसर ने बोला था कि अगर पेपर डिफिकल्ट होना है तो बहुत डिफिकल्ट वाला पेपर हो तो अपना अप्रोच चेंज कर दो, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मतलब ऐसे बोलो कि हर 5 मार्क को बोनस समझो, rather than thinking कि चलो 40 मार्क कैसे आएंगे वो, हाँ। एंड फिर वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बोलोगे चलो ये 4 मार्क आ गया, चलो ये 2 मार्क क्या पे आ गया, चलो 3 मार्क क्या पे आ गया, तो दैट सॉर्ट ऑफ बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस। अब बोलो छोड़ो, इफ यू सी अ पेपर लाइक दिस, उसके बाद घर में जाओ, चलो अज्यूम करता अभी तो 0 मिलेगा, तो चलो नाउ लेट्स सी हाउ मच यू कैन गैदर, तो आई थिंक दैट वे ऑफ अप्रोच कि भाई जितना गिव योर बेस्ट शॉट, जितना आपको आ रहा है उतना लिखो, मतलब अभी नहीं आता 100 मार्क्स नहीं आ पाएगा, 80 मार्क्स नहीं आ पाएगा, तो देन गो फॉर दैट 40, आपको पता चल जाएगा पेपर देखिए 40 वाला पेपर है, 60 वाला पेपर है, 50 वाला पेपर है, तो यू विल हैव टू टेक दैट अप्रोच एंड एक्सेप्ट दैट फैक्ट, एंड पेपर खत्म होने के बाद तो फिर भूल ही जाओ, बिकॉज लाइक दिस इज वन थिंग जो मुझे पता है कि ट्रीट ईच पेपर हैज इफ इट इज अ सेपरेट ग्रुप, भाई वो हो गया बस भूल जाओ, Exactly. दूसरा पेपर भूल हाँ, जाओ, वो correct. somebody will take care of that paper, वो नहीं हो रहा 39 कुछ करा के 40 हो जाएगा, वो बाद में सोचना उसका क्या क्या कर सकते हैं, क्या कैसा क्या पेपर, बट एट दैट मोमेंट फॉरगेट इट। ओके, सो मतलब उसके बाद तो कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं होना हाँ, चाहिए, बिकॉज़ दैट बिल्कुल विल नहीं, हाँ। वेस्ट योर टाइम। अच्छा, Exactly. तो आई सेड यू एंड इट वाज संस्कृति, तो मैं थोड़ा फंबल हो रहा हूं गाइस, इट इज आल्सो फॉर मी फर्स्ट टाइम मैं श्रुति संस्कृति को मिल रहा हूं, सो इट माइट हैपन कि मैं संस्कृति और श्रुति में कंफ्यूज हो जाऊं। Okay, so like not everyone has a sisters or siblings like this. So I would ask कि एक दूसरे को how you used to support, like studies is always a better task. I mean a very tough task. एक दिन कभी low होता है, एक दिन कभी high होता है, तो कि कभी किसी का दिन waste होता है, तो how you both used to back each other? So basically, study partner I think was quite beneficial, and I think the good thing was जैसे हम we would both study the very same thing together, so it could be like हम SFM का same sum कर रहे होगे या फिर audit का जो chapter पढ़ रहे होगे वो same होगा, तो ऐसा काफी हो सकता था। And the good thing about this is जैसे अगर मैं कोई sum कर रही हूँ और मुझे नहीं आ रहा तो तभी I can go and ask her, and then you can get your doubts clear, concepts clear तभी, so that was one benefit. एंड सेकंड हम कॉम्पिटिटिव काफी, तो मतलब वो अगर लेट्स उसका एक चैप्टर हो गया तो आई मेक श्योर कि उस दिन रात से पहले आई हैव दैट चैप्टर डन फॉर मी एज वेल, सो ऐसे कॉम्पिटिटिव थे। सो आई थिंक भाई लाइक यू सेड कि कभी जब लो होते थे लाइक अगर एक भी लो नहीं है ना तो दूसरा फिर कंप्लीट कर लेता था वैसे, जैसे क्योंकि लेट्स मुझे आई एम फीलिंग लो बट शी हैज कंप्लीटेड अ चैप्टर, सो आई मेक श्योर कि आई कंप्लीट दैट चैप्टर बाय द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट, एंड लाइक आई कवर इट अप, सो वो एक था कि बेनिफिशियल फैक्टर रहता ही है। एंड आई थिंक जैसे आप रात के 3-4 बजे तक पढ़ रहे हो तो अच्छा लगता है कि कोई और भी है जो आपके साथ ऐसा सब कर रहा है, तो फिर एक मेंटल सपोर्ट भी मिल जाता है, मेंटल सपोर्ट मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। सो या दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन हैज दिस सिबलिंग वाला फैक्टर, बट वी कैन ऑलवेज हैव अ फ्रेंड फ्रॉम आवर ओन फ्रैटर्निटी कि हाँ ये भी सीए फाइनल कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो फॉर मी आई वुड से मयूर जानी इज वन ऑफ द closest friend I would ask for, and this has been a factor कि जहाँ पर भी I have been low I can connect with him without any question. So एक friend होना ना काफी gives a better result. एक competitive जैसे like श्रुति mentioned कि एक competitive हम लोग targets रख सकते हैं, we can study together, whenever you are low you can have that companion. So I would say कि एक फैक्टर ये भी है कि एक दोस्त बनाए रखना, क्योंकि व्हेन वी आर द ओनली पर्सन स्टडिंग ना, वी डोंट नो वी आर इन द ट्रैक और वी आर लूजिंग द ट्रैक, तो वी कैन एटलीस्ट हैव दैट ट्रैक एंड मेंटालिटी विद ईच अदर्स गाइडेंस कि यस दिस इज समवन who is also there and we should go on the same speed. I mean we should cope up with something. So this is one of the biggest factor, like everyone should adopt at least for a friend, maybe a friend. All right, a great insight for this CA inter. I would take next
session in this for CA final candidates. Basically, you know, this is something very much common. एक बार CA inter का examination हो जाता है. We have 3 years. Like y'all got 3 years, and even I think in new curriculum we have 2.5 years approx after this 2 years का articleship. तो एक ऐसा मेंटालिटी होता है कि यार चलो we have 3 years now, तो आराम से पढ़ेंगे. अभी क्या एक आधा साल मिस कर देते, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं. So what was your strategy कि हमने कैसे स्टडीज स्टार्ट करी और कभी you know interacted with the classes and how did you all manage the articleship and studies? Basically starting में तो everyone has the same excuse, यार articleship चालू हो गई अब मैं नहीं पढ़ सकता, थोड़ा मुझे आराम करना है. तो how did, and being a ranker you all were also in a big four, तो big four तो people have that mentality कि यार it is very much difficult to manage studies. तो how did you manage studies and everything? So in terms of मेरा attempt November 2023 था, तो I started my classes in April 2021. तो तब से ही start कर लिया था. Almost 2.5 years. Yeah, More than but that. I think result was in Feb. तो तब हाँ, ही मतलब 2 classes started months looking for within a- classes हाँ. तभी. तो Okay. April को start कर दिया था, April first week से, and I think we completed in I think September October तक हमने एक subject SFM खत्म कर दिया था, classes plus the self study. I think इतना credit मतलब इतना I think we were in good aspect because वो जो classes थी वो Zoom live था. Correct. तो फिर इवन तो मैं रात को लेट सोती थी बिकॉज यू नो आर्टिकलशिप करते रहते थे, फिर भी सुबह पता था भी लाइव है तो फिर बैठना ही उठना ही है, पड़ेगा. कुछ भी तो है. 4 बजे से फिर भी 7 बजे तो उठना पड़ता ही था. एंड यू नो इवन दो द वर्क प्रेशर वाज देयर फुल ऑन दैट, पर देन ऑप्शन नहीं था डेट हुए. एंड अगर वो टेस्ट दे रहे थे, होमवर्क दे रहे थे, तो ऑप्शन नहीं था, करना ही पड़ता था. तो आई थिंक वो दैट वाज वन गुड वे इन विच की वो ऑडिट सीजन में दो काफ़ी ज़्यादा काम था पर कोई ऑप्शन नहीं था. तो मतलब आई रिमेंबर दिस वन डे वेरी डिस्टिंक्टली. मैं कुछ 3:30 को काम खत्म किया था और मुझे पता था 7 बजे मेरे पास टेस्ट है, जिसके लिए मेरा पूरा प्रिपरेशन बाकी था. मुझे पता था कुछ 2.5 आवर का प्रिपरेशन बाकी था. तो मैं लिटरली आधा घंटा से फिर मैंने 2.5 आवर का प्रिपरेशन किया, फिर पूरा क्लासेस अटेंड किया, फिर काम किया, फिर यू नो सोई. मैं लिटरली आई वाज वेरी स्लीप डिप्राइव्ड. पर ऑप्शन है, अगर Option टेस्ट नहीं. है तो फिर आपको वो तो पढ़ना ही पड़ेगा. आई थिंक होमवर्क करना ही पड़ेगा. तो आई थिंक वैसे दैट वाज हाउ आई वाज एबल टू मैनेज इट बिकॉज यू नो क्लासेस था, टेस्ट था, एंड उतना तो सिंसियरिटी आपको लेनी पड़ेगी कि इट्स ऑलवेज ईजियर फॉर मी टू से यार छोड़ दो बेटा टेस्ट नहीं दे सकते, हाँ. उससे अच्छा बैठ के थोड़ा सो जाते हैं, यू नो, तो बैठते रहेगा. बट आई Exactly. थिंक दैट्स योर कॉल, दैट इज योर चॉइस आई विल से. सो आई बट दिस आई सी दिस कि आप इंटर आपने पास किया, यू डिजर्व अ ब्रेक. नॉट से कि भाई एक दिन मतलब बैठ के आप पढ़ने लग जाओ. बट आई से आप 3 घंटा तो फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आप 1-2 घंटा वीक में तो दे ही सकते हो ना. इन द वीक डेज आप 1-2 घंटा पर यू नो दिन दे दो. वीकेंड में 6-7 घंटे तो दे ही सकते हो ना. बाकी पूरा दिन है आपके पास काम करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, जो भी आपको करना है. तो यू नो एंजॉय बिकॉज यू डिजर्व इट एंड यू नो टू एक्सप्लोर. सीखना भी तो पड़ेगा ही ना आर्टिकलशिप में. तो वो है, बट देन दैट इज वन कि वो जो 6-7 आवर्स यू हैव टू गिव. नाउ दैट इज नॉट गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज नो मैटर व्हाट इज द केस. फिर उतना Exactly. आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा. Correct. आई थिंक दैट वाज दैट डे 1 से स्टार्ट करो एंड स्लो स्टार्ट करो, चलेगा. हाँ, दैट डजंट मैटर कि आप बैठ के हर एक मिनट बैठ के पढ़ते रहो, जैसे काम खत्म हो बंद करो फिर पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है. हैव सम स्पेसिफिक टारगेट कि 1-2 घंटा तो आप कर सकते हो. हाँ. इतना टाइम तो होगा आपके पास दिन में फॉर श्योर. फर्स्ट टाइम तो Exactly. इतना भी आपको काम नहीं देंगे. एंड ऑडिट सीजन होगा या फिर आप अगर टैक्स में तो फिर टैक्स जो भी होता है सीजन वो रहेगा, वो पार्ट इज एक्सेप्शनल. तो बाकी टाइम उतना तो होगा कि यू कैन डिवोट 1-2 आवर्स फॉर श्योर. एंड देन ऑब्वियसली हमारे पास 3 साल था, तो ऑब्वियसली हमने फिर फर्स्ट ईयर ऐसे करके देन यू नो वी स्टार्टेड ऑन फ्रॉम द सेकंड ईयर. अब हम लोग के पास 2.5 ईयर, तो आई थिंक 6-8 मंथ्स यू कैन फोकस ऑन योर क्लासेस एंड यू नो गिविंग द लेस एफर्ट्स रिलेटिवली. तो फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स. यू हैव टू गो फुल फ्लेज. Okay. फिर 3 आवर्स करो एटलीस्ट Got it. वीकडे में. Then हाँ. weekends में आप 8-10 hours try करो. That is. And I think Agreed. the thing that worked best for me was eventually I realized in the second year कि I think एक live lectures और recorded lecture का एक combination लेना. Correct. कि the reason of live lecture is because live lecture थोड़ा discipline enforce करेगा. Exactly. सुबह live lecture 7 to 10 है, तो मैं बैठूंगी 7 to 10 no matter how like late I've slept. No matter what I'm doing, I'll sit at 7 to 10. एंड द रिकॉर्डेड का बेनिफिट ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी. अगर कभी कोई बीच में काम नहीं है तो मैं बैठ गई, या फिर कोई रात के 2 बजे मुझे बैठ के लेक्चर देखना है, तो आई कुड सी दैट. एंड ऑल्सो द बेनिफिट कि आप उसे 1.5x 1.25x में देख सकते हो. यू कैन ऑल्सो सी इट फास्टर. फिर जो अगर टाइम पास कुछ हो तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो. अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ गया तो उसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो. सो वो बेनिफिट फ्लेक्सिबल मतलब लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर था. सो आई थिंक व्हाट वर्क बेस्ट फॉर मी वाज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड.
And plus, Okay. obviously, set up self-study करते रहो. But then this is what I had observed was working best for me. And second, I think जैसे you were saying कि हम कैसे आर्टिकल के साथ भी थोड़ी पढ़ने हाँ, की कोशिश करते हैं. exactly. So, like for example, first year was predominantly COVID to work from home था. So we benefit that. But eventually, when things opened up in the second year, so I think I had a lot of traveling time. So I would go to Churchgate all over. So which was around 2 to 3 hours of traveling every day. So then I would see some revision lectures during the way. कोई पॉडकास्ट सुन लेती थी भाविक सर के. हाँ. तो ऐसे मतलब I would keep using the travel time Travel to time study, to which is revise, ऐसा अगर revise लगेगा it. कि इतना नहीं है, but it builds up to be a lot of it. So I think आप Correct. ऐसे ही you can use small time in between. Like for example, lunch अगर मैं खा रही थी, let's say lunch break में मैं अकेली थी, I was in the client place, I was alone. तो फिर lunch में I was looking at some revision videos. तो ऐसे बीच में आप time निकाल के भी पढ़ सकते हो. You can maybe take out a print out of some audit के theory notes और उसको देखते जाओ जब भी आप free हो. Correct. So try to find Find out time out in a way. between. Because ये रिवीजन ही है जो थोड़ा थोड़ा will add up something Correct. and make it something big. So करेक्ट फॉर एग्जांपल आप सुबह जल्दी निकलते हो फॉर द जॉब एंड आप रात तक आपको पता है आप लेट आते हो इट इज नॉट पॉसिबल कि ना सुबह ना रात को आप दे पा रहे हो फिर आप ट्रैवलिंग टाइम या बीच बीच का टाइम फिर दैट इज व्हाट यू हैव टू यूटिलाइज Correct. सम पॉइंट ऑफ टाइम Somewhat. ऐसा आएगा कि आपको ना सुबह का टाइम मिले ना ना सुबह. शाम का मिले तो मतलब रात का Because मिले Big Four is always like Yeah, सुबह हाँ. जाना है और रात को वही, it's correct. like delay होना ही है. स्पेसिफिकली जैसे अगर वी वर इन ऑडिट तो ऑडिट सीजन का Audit था, season. जो टैक्स वाले लोगों को टैक्स सीजन में December, काफी yes. दिसंबर टाइम एंड एवरी Every मतलब हाँ. पूरा सीए फॉर्म्स में तो चलते ही रहता है. Correct. टैक्स रहेगा या तो ऑडिट Audit रहेगा, रहेगा, इनडायरेक्ट फिर टैक्स, हाँ, डायरेक्ट correct. टैक्स तो मतलब वो तो So, चलना नहीं, ही है. तब अगर आपका थोड़ा कम पढ़ाई हो रहा है तो भी चलेगा बट यू टू कंपेंसेट फॉर दिस जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑडिट में हो तो आप अप्रैल में जून आपका वर्स हो सकता है दैट्स फाइन तो फिर आपको इंश्योर करना पड़ेगा जुलाई अगस्त या फेब जनवरी उसमें यू आर एबल टू पुट इन हायर आवर्स टू कंपेंसेट फॉर द सेम तो वो आपको Okay. इंश्योर करना पड़ेगा. Got it. जैसे it is always important to take a test also. मतलब यार हम लोग पढ़ रहे हैं but we should also evaluate those things. तो when you are giving your mock test exams or class tests, what you used to evaluate basically? Because people what do like they give the mock exams but maybe they forget marks देखकर शायद छोड़ देते थे and they try to improve it. But what you used to evaluate वो एक I would ask. लास्ट के जब 6-7 मंथ लगेगा आई थिंक वी स्टार्टेड अ टेस्ट सीरीज इन अप्रैल नवंबर 2023 के लिए जो आई थिंक अप्रैल में वो 50% Correct. स्टार्ट किया था. सो मैं क्या करती थी अगर एक टेस्ट लिख दिया तो पहले तो खुद आई वुड चेक इन टर्म्स ऑफ कि क्या आंसर बेसिक है थियोरी तो आप चेक कर ही सकते हो क्योंकि आपने खुद ने लिखा एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाएगा. सम्स में अगर आपको बेसिकली सॉल्व करते वक्त आपको पता चल गया था कि यार इनमें हम को आपने प्रोविजन एग्जाम्पशन पढ़ा है फिर भी डाउट आ रहा है आपको पता है फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे इसमें आपने नंबर्स पढ़े पर आपको वो याद नहीं आ रहा या फिर ये सम तो आपने किया भी था पर देन यू आर स्टिल मे बी ब्लैंक हो गया या फिर यू नॉट एबल टू फिगर इट आउट आपने कोई सिली मिस्टेक कर दिया तो आई थिंक वो अप्रोच से आपको पता चल जाएगा कि चलो ठीक है इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है इसका आपने कीवर्ड्स पढ़ा था फिर भी कुछ याद नहीं रहा तो थोड़ा बेटर पढ़ो थोड़ा बेटर रिवाइज करना पड़ेगा इसमें थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए रहेगा तो आई थिंक वो इवैल्यूएशन आई वुड डू जस्ट आफ्टर राइटिंग द पेपर बिकॉज ये चेक होने के बाद 3-4 दिन के बाद आता है तब तक आप लिटरली भूल जाते हो कि क्या था क्या ये सब कुछ ही भूल जाते हो मेन तो यही होता है कि जब तक इवैल्यूएट होके आता है हमें भी नहीं मालूम कि लिखा क्या लिखा है करेक्ट. सो आई थिंक तभी मैं इवैल्यूएट कर लेती थी कि क्या नेक्स्ट रीडिंग के मतलब वो रीडिंग तो खत्म हो जाती थी तब तक तो एटलीस्ट नेक्स्ट रिवीजन के लिए नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आपको जो अगर आप 3 आवर्स लिख के जो आपने 3 आवर्स स्पेंड किया लिखने के लिए अगर उससे आपने क्या सीखा अगर आप इवैल्यूएट नहीं करते हो तो वो अनप्रोडक्टिव 3 आवर्स हो जाएंगे. सो आई थिंक ये काफी टाइम लग रहा था अगर 3 आवर्स का पेपर लिखो तो ऑलमोस्ट वुड टेक 45 to 1 hour फॉर अस टू सिट एंड इवैल्यूएट कि सारे आंसर्स कौन से राइट थे क्या नया सीखने को मिला क्या नहीं आता था पेपर में वो सीख लो. सो ऑल ऑफ दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट फिर तो ही वो 3 आवर्स प्रोडक्टिव होते थे. करेक्ट. तो मतलब ये इवैल्यूएशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपन मॉक टेस्ट देते हैं. तो अल्टीमेटली दिस इज द मेन थिंग्स जहाँ पर वी हैव स्कोर्ड दिस मच एंड गॉट दिस रिजल्ट. तो लास्टली आई वुड से कि जब रिजल्ट डे था व्हेन यू ऑल वर कंप्लीट एकदम रिलैक्स्ड हो गए थे व्हेन यू न्यू कि हाँ चलो अभी आज रिजल्ट है तो एक रिजल्ट का मॉर्निंग से जैसा एक रिएक्शन था वो मेरे को जानना है लाइक बिफोर रिजल्ट्स एंड आफ्टर रिजल्ट्स एंड आल्सो योर पेरेंट्स रिएक्शन ऑन दिस. सो आई थिंक बेसिकली मैं तो आई थिंक हर 12 o'clock से मतलब जब से रात के 12 बजे थे तब से अब वो रिफ्रेश चल ही रहा था. So हर हाफ एन आवर में आई वाज बेसिकली रिफ्रेशिंग पूरे मुझे तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि स्टार्ट के कुछ 5 बजे रिजल्ट करेंगे बिकॉज आई थिंक इसके पहले वाला टाइम में काफी सुबह रिजल्ट आया था 6 बजे तो मैं ऑलमोस्ट हर हाफ एन आवर में आई वाज लाइक रिफ्रेशिंग द सेम. फिर उसके बाद इवेंचुअली एक न्यूज आया था कि इट्स गोना कम समवेयर एट अराउंड 11 o'clock. 9 o'clock था फिर 11 o'clock.
तो बेसिकली वो लैपटॉप ऑन ही था, उसमें रिफ्रेश हम दबाई रहते हैं. So like that was how the morning went. But फिर expected था कि कुछ 11 o'clock को आ जाएगा. So I think कुछ around 10:45. I think 10:55 I tell you the आपको. situation क्या था कि I have a nephew also, the छोटू जो 5 months old है, Okay. 6 months हुआ है. तो फिर भाभी गई थी for some work, तो हमें देखे रखे था. हम basically वो हमारा source of entertainment and distraction था, because तब इतने nervous थे कि आप क्या ही कर रहे हो. तो वो उससे हम थोड़ा entertainment कर रहे थे. And then पहले तो हम बैठे थे, उससे entertain कर रहे थे और ये ढूंढ रहे थे. But then people said कि 11 बजे आएगा. तो फिर अगर हम आराम से हो गए थे, हमने बोला कि चलो अभी नाश्ता कर लेते हैं, रिजल्ट से पहले नाश्ता करके तो एटलीस्ट रखते हैं. ऐसा ही कर रहे थे. तो आई थिंक आई रिमेंबर द सिचुएशन कि ऐसा लैपटॉप खुल के रखे थे, इसको अद्विक को एंटरटेन करवाना था. तो इसलिए मैंने यूट्यूब में कोई वीडियो खुला था कि वो कुछ थोड़ा एंटरटेन, क्योंकि वो काफी चिड़चिड़ा हो गया था. तो तभी आई हैड रिसीव द कॉल एंड इट वाज फ्रॉम अ सीसीएम मेंबर. तो बेसिकली Okay. उसका उनका नाम आया था वो सीसीएम हाँ, मेंबर हाँ, का. तो फिर देन आई सेड कि चल उठा लेते. तो नॉर्मल ऐसे उठा लिया था. It was like I think a 30 seconds conversation जो उन्होंने बोला कि I am the president and congratulations, आप you got AR2 and you got 599 marks, congratulations. मैंने थैंक यू बोला and वो बस फोन कट गया. So if see this was a literal 20-25 seconds conversation. seconds अभी of process, यकीन हाँ. आपको एब्जॉर्ब होने के लिए आपको तो यकीन ही नहीं होगा ना यार. फर्स्ट वो ट्रू कॉलर का वो मैच नहीं हुआ था. तो उसके बाद आधे पॉइंट ऑफ यही प्रोसेस कर रहे थे कि हुआ क्या था अभी. तो आई थिंक वो थोड़ा टाइम था. आई थिंक वो 30 सेकंड्स और गए थे. फिर वाइस प्रेसिडेंट का मैसेज आया. तो फिर हम बोले कि चलो अभी एविडेंस तो आ गया. Evidence था. किधर लिखा है? किसने लिखा Written है? proof. Written Written proof. जो स्कैन करके वो फोन पे रहते हैं. फिर रिटन प्रूफ एंड वो आईसीआई का वेरीफाई आता है, मैसेज में आता है. हाँ. तो मैंने कहा चल अभी अब आ गया, अब बता देते. तो मैंने मम्मी को बता दिया कि यार मुझे लगता है अभी जो कॉल आया था वो प्रेसिडेंट का आया था. अब मैसेज भी आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि Oh यार my तू तो आ God. गया. आई थिंक फिर क्लोज वाले को हमने बोल दिया था, यही बोलते कि अभी रिजल्ट तो आया नहीं है. आई थिंक तो 20 At what time? 10:40 हाँ ऐसा. 15-20 minutes before Okay, the okay, actual actual result आया results, था. okay. एंड सी हमारे इसमें था कि अगर फैमिली या रिलेटिव्स वगैरह को बोलो तो श्रुति के मार्क्स पूछे थे ना, बिकॉज़ हाँ, ऑब्वियसली exactly. हाथ की हाँ. इसको उनको थोड़ी पता था No, कि no. मुझे प्रेसिडेंट से कराया था, हाँ. मतलब द नॉन सीए बैकग्राउंड वाले. हाँ. तो फिर ऐसा बोल कि एक काम करते बाद में बाद में एक बार बता दे. मुझे खुद को भी दिख जाए कि हाँ एक बार यार तू दिख जाए, फिर एक काम करते बता देते हैं. I just hope prank call ना हो हाँ. ऐसा. ऐसे स्टार्टिंग में तो वो ऑब्जर्व करते, पर ना यार एविडेंस दे दिया था ना, तो मे बी चांसेस कम थे कि वो प्रैंक कर. नहीं हाँ ऐसा definitely. मैसेज आ गया था. मतलब हम लोग है ना ऐसा भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ऐसा दिया गया लगा दे, भगवान पास कर दो. आप लोग ने तो मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, फोन तो ऐसा नहीं रख दिया था भगवान इधर फोन आ जाए बस प्रेसिडेंट का. See, इंटर में I had this I had got AR3 पर मुझे कॉल नहीं आता. So why I relate to that fact कि जब Okay, इंटर. हाँ इंटर में मुझे भी AR3 आया था, पर तब मुझे कॉल नहीं आता. क्यों नहीं आता वो पता नहीं. But then the same मेरे पास भी सेम फीलिंग था. जो वो लिटिल को आप एंटर प्रेस करे थे भाई कि बस पास पास, पास, बस हाँ. जो भी जैसे भी बस पास करा दो भी. My God. जितना भी लक हमारे पास है जिंदगी में प्लीज यूज बस. करके बस आप पास. पर ये इसमें नहीं था क्योंकि कॉल आ गया था, तो मेरे पास तो हुई रही. Wow. हाँ, तो Great. ये That's the था. greatest feeling. हाँ. What was your parents' reaction for this? I mean, मम्मी तो रोने लग गई थी. मम्मी रोने लग गई थी. Was your dad also at home? या my dad was also. He was about to go to work, फिर तब तक कॉल आ गया था. तो वो जो अच्छा, हाँ, उस हाँ, time हाँ. पे, हाँ. मतलब it is the ultimate happiness ना, मतलब अब हमारा पूरा efforts जो है ना, when we see our parents crying with the happiness. तो मेरे तो ग्रैंडपा भी parents थे, तो का- उनको Okay. ऐसा बोल दिया था कि मुझे यार 2 है, पर कभी किसी को बताया नहीं, बिकॉज एक बार श्रुति का रिजल्ट आया फिर साथ में बता दिया. हाँ. पर फिर भी आई थिंक वो 20 मिनट्स उन्होंने लिटरली हर एक रिलेटिव को कॉल करके, मेरे एक रिलेटिव था, कजिन है, तो वो प्रॉब्ली एग्जाम, उसका भी एग्जाम था इंजीनियरिंग एग्जाम. Correct. तो उसको कॉल करके बताया कि यार तो बेचारा वो भी पढ़ेगा, आप बाद में भी बता देते, मैं तो एग्जाम देने जा रहा हूँ. लिटरली पापा ने हर एक इंसान को कॉल करके हर रिलेटिव को कि भाई इसको यार आ गया. Wow. That's how happy he was. Nice यार, मतलब to be honest वो relatives and mainly तो parents, this is the ultimate source of happiness कि हाँ चलो we are now more than happy कि एक prefix तो लग गया, और साथ में even our parents is you know happy and relaxed कि हाँ चलो अभी पढ़ना ये main चीज तो होगी, अभी बच्ची को जो करना है वो कर लेंगे. तो lastly I would ask your mother if she can join us so that we can give a you know memento for her. Sure. Yeah, please. हेलो आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली कि दिस इज आल्सो योर अचीवमेंट. आपका भी यही अचीवमेंट है कि आपकी बच्ची लोग सीए बन गए. सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू विद दिस बुके. जस्ट अ कैमरा. एक मतलब आपका क्या रिएक्शन था और आपको आज कैसा लग रहा है व्हेन योर
डॉटर्स आज वो लोग सीए बन चुके हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन, एक बहुत खुशी, एक रिलैक्स हो गया रहेगा थोड़ा. सो इट इज एक कि हमारा जितना भी एफर्ट्स होता है ना, सारा पेरेंट्स के थ्रू ही आता है. लाइक वी आर एबल टू गिव 100% ओनली बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स. हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन साथ में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन इतना होता है ना, लाइक इट ऑलमोस्ट गोज अननोटिसेबल. उनका डेली फूड देना या वट एवर इट इज. So this is a big congratulations to you. Thank you. Not only your daughters have secured a rank, it's also you Yeah. who has secured a rank. So congratulations once again, and thank you for being a part of this. Thank you. Thank you. Alright, so great session and insightful session for all our CA students who are appearing for CA Inter and CA Final. So thank you so much, Shruti and Sanskruti. To all the students, I would like to just conclude this that thank you so much for this session. I hope this session was insightful to all of you. Do share this video with all your friends so that हमारे rankers जो आज guest बन के आए हैं, उनकी insights, उनके जो experience है, it should be shared with everyone. जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो 99% हमारा मेहनत होता है और 1% luck होता है. तो maybe you'll get that 1% luck by sharing this insights to your friends as well. So thank you so much everyone for joining us, and I hope this video is beneficial to you. Do share your insights and do share this, and comments में जरूर बताना how was this session. Until then, see you. This was Darshit Kothari signing off. So how was this session, guys? यार to be honest, मैं पहले बहुत ही नर्वस था before shooting podcast with them. But after this podcast was shoot, हम लोग के बीच में जो conversations हुई है, they really made me feel they are so down to earth and really open to share all their learnings and experience. They have got hundreds of calls in from the day of their results out, and they have answered to almost people's, but they have not been able to track few, but still they are so supportive to all our fraternity mates. Like whenever you try to approach, maybe she will take some time, but they do approach. Yeah, they are so good. I hope their learnings and experience have added too much value into your actual journey of your preparations. And this has been an amazing podcast, and do share this video with your friends so that this efforts of theirs and ours is spread eventually to all our fraternity mates. So do please thank Shruti and Sanskruti Parolia in our comment section, and also messaging them in person, so that they will also feel motivated by sharing their experience and learnings, and let us know in the comment section how was this video. Until then, my student club is going to bring more such insightful sessions and videos so that you will keep on upskilling. Stay tuned for our next upcoming sessions. Until then, this was Darshit Kothari signing off.